اور فرائی پین دے فرائی پین دے فرائی پین دے کیا چلی نہیں لوگے دودھ لوگے دودھ دے دیں دودھ ہے فاروق بھائی دودھ ہے نا دیکھا ہے دودھ ہے وہ نکل رہی ہے باٹی تری لے کی بس ہاں اس طرح سے کھانا ہے اور تری کی ایک بازی اور منگاؤ اس سائڈ ادھر او سر ادھر اے پہلے ادھر اور پانی گلاس کو اس سائڈ کھا اچھا ہاں کھا کھا کیا کیا پانی پائی نکلتے ہیں کہ اس مقام پر جہاں پہ سلوتری جلاس جو ضلع فوج کا ایک مقام ہے جہاں پہ گزشتہ قبل تقریباً 2 دن پہلے جو ہے پاکستان کی فائر ورزی کی وجہ سے ایک ہی پریوار کے 3 آدمی جو ہے لقمہ اوجل ہو گئے تھے اور اس کے بعد ضلع انتظامیہ کی طرف سے جو ایک انتظام کیا گیا جو وہاں کے لائن آف کنٹرول کے نزدیک جتنے بھی لوگ وہاں سے منتقل کر کے یہاں جو محفوظ جگہ ہے وہاں پہ لایا گیا ہے. پچھلے 2 دنوں سے لگاتار ہم یہاں پہ آ رہے ہیں, ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور آج بھی ہم یہاں پہ موجود ہیں. ان لوگوں کے کیا مسائل ہیں, ان لوگوں کا کیا کہنا ہے, کیسا یہ یہاں پہ محسوس کر رہے ہیں. ایک طرف جہاں ان کو اپنے گھروں سے بے گھر ہونے کا دکھ ہے, وہیں دوسری طرف ان کو تھوڑی سی اس بات کی بھی خوشی ہے کہ یہاں کی ضلع انتظامیہ اور یہاں کے جو عوامی لوگ ہیں وہ شانہ بشانہ جو ہے ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تو مزید تفصیلات کے لیے ان لوگوں کا کیا کہنا ہے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنے گھروں سے بے گھر ہیں وہ کیسے ماحول میں جی رہے ہیں, عوام تک یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں, تو چلیے ہم انہی سے بات کرتے ہیں. اور خاص کر کے آج ہم بات کریں گے اس پریوار سے, اس شخص سے کہ جس کا پورا پریوار جو ہے اس کے 3 آدمی گھر کے جو ہے لقمہ اوجل ہو گئے اور ایک ان کا لڑکا جو ابھی بھی زندگی موت سے لڑ رہا ہے. تو وہ اپنے گھروں کو بھی ایک طرف جہاں ان کو پریوار کا صدمہ ہے, وہیں دوسری طرف وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں پہ بے گھر ہیں. تو ہم انہی سے بات کرتے ہیں, ان کے اندر کیسی بھاونائیں ہیں, کیا جذبہ ہے, کیا کہنا ہے حکومت کے لیے ان کا. تو یہ تفصیلات کے لیے محمد اسلم سلوتری کا رہنے والا ہوں. تو آج 4-5 دن سے جو حادثہ ہوا ہے, میرے گھر کا پورا پریوار ختم ہو چکا ہے. لہذا آپ اس بات کو خود ہی جانتے ہیں کہ ایک گھر سے اجڑ کر دوسرے گھر اگر جاؤ, کہیں بھی جائے کوئی, اس کو کتنی پریشانی ہوتی ہے, یہ سب لوگوں کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. تو ہم اس لیے وہاں سے یہاں آئے. ضلع انتظامیہ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے, انتظام کھانے پینے کا, کپڑے کا, سب کچھ انتظام کیا ہے. لہذا ہم یہ بات اوپر تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ میرے گھر کا پریوار پورا ختم ہو گیا, مکان ختم ہو گئے, ہمارے 5-6 مکان ختم ہوئے. تو جہاں یہ بڑے بڑے لیڈر آئے ہیں, چاہے وہ کانگریس کے ہوں,
MLC के हों, कोई भी लीडर है, बड़े बड़े जम्मू कश्मीर के लीडर आए हैं यहाँ, हमको उन्होंने गले लगाया सिर्फ, तो हमें कुछ दिया नहीं, कुछ हमारी मदद नहीं की, कुछ इंतज़ाम नहीं किया। लिहाजा हमारी ये बात ऊपर तक पहुँचनी चाहिए कि क्या हम इस हिंदुस्तान के रहने वाले हैं या नहीं हैं। हम हिंदुस्तानी हैं और हम अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। इसमें मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी कुछ न कुछ मदद भी होनी चाहिए। किसी ने हमें कुछ नहीं दिया बगैर ज़िला इंतज़ामिया के और यहाँ के सिविल लोगों ने हमारी बहुत मदद की है। ये आप लोग खुद ही जानते हैं कि जंग, हमें पता है कि जंग कैसा होता है, हमें लगी है। अगर यहाँ गवर्नर साहब को भी आना चाहिए था, मौका हमारा देखना चाहिए था। वहाँ कुर्सी पे बैठकर जंग की बोली चलती है, जंग करेंगे, जंग करेंगे। जंग तो उन लोगों को पता है जो हम गरीब आवाम हैं, हमें पता है कि जंग क्या होता है। अगर उनके बच्चे भी यहाँ बॉर्डर में हो, अपने बच्चों को लेकर यहाँ आए तो वहाँ से फायर आएगा, आपके बच्चे मरेंगे तो पता चलेगा कि जंग कैसा होता है। तो लिहाजा इसी में मैं ज़्यादा क्या कहना चाहता हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता है। जिसका परिवार उठ जाता है उसी को पता होता है कि क्या होता है। मैं भी ये कहता हूँ कि अमन होना चाहिए। अब भी फायरिंग बंद नहीं हुई है, अब भी फायरिंग बॉर्डरों पे चल रही है। देखो कितना कितना नुकसान होता होगा आज भी लोगों का। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए, फायर बंदी होनी चाहिए, अमन शांति होनी चाहिए, या इन लोगों को के लिए कोई हौसला अफजाई होना चाहिए, कोई बैंकर होने चाहिए। वो भी कुछ नहीं, कोई इंतज़ाम नहीं है। जो आते हैं लीडर सिर्फ अपनी कुर्सी की लालच में आते हैं। अब इलेक्शन आ गए हैं, लेकिन आवाम को समझ आ गई है कि इलेक्शन आ गए, वोट किसको देना है, फिर वो बाद की बात देखेंगे। लेकिन हमारे लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया। ये बात ऊपर तक पहुंचनी चाहिए कि हिंदुस्तान के रहने वाले हैं या नहीं हैं। हमें मुसलमानों को इस तरह समझा जा रहा है कि जैसे कुत्ता मार जाता है तो किसी को परवाह नहीं होती, उसको खींचकर नाले में डाल देते हैं। इस तरह हमारे मुसलमान बच्चे, औरतें, बड़े बूढ़े मर्द मर चुके हैं, तो किसी को कोई परवाह नहीं है कि ये इंसान है कि या कुत्ते मार रहे हैं। ज़्यादा मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, इत्तेफाक करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सर बताएंगे, जो ये लोग LOC के बिल्कुल नज़दीक थे और जिनको घर बार अपना छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा है, और एक तरफ जहाँ इनको अपने घर बार का दुख है, वहीं दूसरी तरफ इनको थोड़ा सा जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन पे भी थोड़ा सा दुख का इजहार हो रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, जहाँ तक आपने बात की है कि इनके घर के छोड़ने की, तो मैं सबसे पहले ये समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जो मिलिटेंसी के दौरान जिन पे बहुत बुरा असर पड़ा, इफेक्टेड हुए। उसके बाद ये जैसे तैसे करके कहीं ना कहीं ये इन्होंने अपना छोटा मोटा जो है घर बनाया बॉर्डर के नज़दीक, शायद ये समझ के ली होगी जगह कि शायद सस्ते में मिल गई होगी कहीं पे। लेकिन उसके बाद जैसा कि आपने पॉलिटिकल लीडरशिप की बात की, तो मैं सबसे पहले तो ये समझता हूँ कि जहाँ तक सवाल था इनके वहाँ से इनको निकालने का, तो मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन ने जब हालात ऐसे गर्म हुए तो मुल्क के अंदर ऐसा सिलसिला चल रहा था, तो उनको वक्त पे अगर वहाँ से निकाला होता तो शायद मेरे ख्याल से आज ये नौबत नहीं आती। तो बहरहाल चलो, जो हुआ ऊपर वाले की मर्ज़ी, हम इसको मान के चलते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपने पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कही, और नहायत ही अफसोस के साथ आज दूसरे दिन से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े चेहरे जो है तशरीफ़ फरमा हुए, लेकिन उनके जो सवाए फ़ोटो उनके साथ लेने के, सेल्फी लेने के सिवा उनके ना ही तो कुछ दिल में था और ना ही उनके दिमाग में था। हर पार्टी का लीडर यहाँ पे आया, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने इनको क्या दिया। और दूसरी तरफ में जो हमारे यहाँ गांव कुनैया की यहाँ की लोकल आवाम है, उसमें जो हमारे दोनों सरपंच साहिबान हैं, अमीन मागरी साहब हैं, इकबाल पांडे साहब हैं, यहाँ ये दीवान साहब हैं, जहाँ से छोटे बच्चे से लेके बड़े आदमी तक जो है दिल खोल के जो है इनका भरपूर तावन किया है, और इंसानियत की बुनियाद पे जो है इनको वो तावन दे रहे हैं। और जो है उम्मीदें जहाँ तक पॉलिटिकल लीडरशिप से हमें और इनको नज़र आ रही हैं वो ना के बराबर है। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, और उन्होंने भरपूर तावन इनको दिया है, और
और हर महकमा के लोग जहाँ पे आ रहे हैं, और वो बच्चों को चाहे वो पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, चाहे वो हॉस्पिटल का इनकी दवाई दारू का मसला हो, तो वो जो है वो अच्छे से इनकी देखभाल कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं पॉलिटिकल लीडरशिप से ये कहना चाहूँगा कि बराह करम जो कि आप जो है ऊपर वाले को हाथ ना लगा के इनके दर्द को आप समझिए। और जब वोटों का दौर होता है तो आप गिड़गिड़ाते हुए, तुम दबाते हुए भागते हैं, लेकिन जब ये लोग परेशानी में मुब्तला होते हैं तो वो एक जो है वो आप जो है सिवाय सेल्फी के आपके पास और कुछ भी नहीं होता। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो है वहाँ पे जो उनको दिखाना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिखाया। सर, आपको नहीं लगता है जिस तरीके से आपने कहा कि जब वोटों का दौर होता है तो इन्हीं लोगों के पीछे वो भागते, आपको नहीं लगता है कि जब वोटों का दौरा होता है तो तब इन गरीबों की जो है कीमत लाखों में गिनी जाती है, लेकिन आज वही गरीब जो है जीरो के दाम में यहाँ पे पड़े हुए हैं, इनकी तरफ कोई मुतवज्जह नहीं हो रहा है और इलेक्शन भी बिल्कुल सर पे है, तो इन लोगों का कैसा रवैया रहेगा उनके? सर, ये इलेक्शन का एक स्टैंड मानिए इसको, जो लोगों का आना हुआ था, जो बड़े बड़े चेहरे आए थे, वो इनके दर्द को देखने या समझने नहीं आए थे। वो जो हाई कमांड को या खुद को दिखाने आए थे कि हम इनके मसीहा हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके वोटों के साथ जो है इनका खिलवाड़ होता है। और मैं आपको यकीन से ये कहता हूँ कि जो टीम अब बनी है, ये जो हमारे नौजवान सरपंच जो खड़े हैं, ये पढ़े लिखे जो लोग आप फील्ड में आए, ये वक्त आने पे इनको जो है सबक ज़रूर सिखाएंगे, ये आप ये यकीन रखिए। थैंक यू।